Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we're going to start now is mesh analysis. Mesh analysis. So as it is evident from the name that it will have something to do with the mesh. What was a mesh? If you recall from chapter number 2, a mesh is a closed path in a circuit in which no node is encountered more than once. यानी कि जो भी node जिस node से start करना शुरू होता है वो खत्म होगा closed path, and no node is encountered more than one in that closed path. So that is called as a mesh. And if you remember from chapter number 2, the number of meshes from a circuit is equal to the number of the window panes. जितने windows आपको नजर आएंगे अपने circuit के अंदर उतने ही आपके पास meshes होंगी. So from the name, it is clear to us that it has something to do with the mesh. However, and as far as the meshes are concerned, there is a particular connection constraint law which is associated with the mesh, KVL, Kirchhoff's voltage law, which states that sum of the voltages in a closed path in a circuit is equal to 0. So from here we can see that कि अगर mesh analysis है तो इसको कुछ ना कुछ ताल्लुक इसका KVL के साथ होगा. अब KVL जो it is based on the law of the conservation of the energy. इस तरह KCL that is based on the law of the conservation of charge, it is based on the law of conservation of energy. That is, energy rise in the circuit is equal to the energy drop in the circuit. And you can either take the positive, the energy rise as positive, and the energy drop as negative, or you can assume vice versa as well. It won't make any difference. However, you need to stick to one particular assumption throughout your circuit, throughout your analysis. How are we going to apply this mesh analysis? Let us consider an example, a very simple example, as we studied our nodal analysis. In a similar fashion, we're going to start our mesh analysis from the simpler questions, and then gradually we will increase the difficulty level to incorporate special case scenarios. So we will start our discussion with the simplest of the circuits or the difficulty level. We have a 12-volt voltage source. We have a 6 kilo ohm resistor. We have another 6 kilo ohm resistor. We have a 3 kilo ohm resistor. And this is a 3 kilo ohm resistor. We have to find out the value of the output current, which is I0, by using mesh analysis. We have to find out this value of I0 by using mesh analysis. I'm sure that by now you will be well versed and trained enough to find out the value of I0 by using nodal analysis. However, now the examiner is asking us that we need to perform this analysis to find out I0 by using mesh analysis. As far as the mesh analysis is concerned, the first step that we're going to do is that we will see that how many meshes can be drawn in a particular circuit. And the rule of thumb, जो बड़ा एक आसान तरीका identify करना है कितनी meshes हमें चाहिए होंगी, that is to look at the circuit and look at the windows. कितने windows हैं उसमें? जितने windows हैं उतनी meshes बनेंगे बस. एक window, दो window. So we need 2 meshes to perform the mesh analysis on this circuit. That is, we need to draw 2 closed paths, ठीक है जी, in which no node is encountered more than once. So let us say that this is one mesh and this is the
सेकंड मैश। ठीक है, हमने दो मैशेस क्रिएट कर लिए, ये दो क्लोज्ड पाथ हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसके अंदर दो क्लोज्ड पाथ बन गई। क्लोज्ड पाथ को शो करने का एक छोटा तरीके का हम इस तरह सुंदर मैशेस क्रिएट, इस तरह एक सेमी सर्कल सा बना लेते हैं, ऊपर इसके ऊपर एक वो एरोहेड लगा लेते हैं। आप एरोहेड इस तरफ भी लगा सकते हैं, आप एरोहेड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है तो फिर आपने यू हैव टू इंश्योर दैट यू स्टिक टू द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रूआउट द analysis, throughout the entire analysis. You do not change your assumption. However, I prefer the clockwise direction, so I will always take the loop direction as the clockwise direction. ये बेसिकली किसका शॉर्टकट, इसका शॉर्ट है। असल में यहाँ पे ये लूप है आपके पास, ये देखें, ये मैश है आपके पास, ये टोटल क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ that you're starting from this node, then you go to this node, then this node, and then back to the original node. So ये क्या है, कोई भी नोड इसमें दो दफा नहीं आई आपके पास। आप इस नोड से स्टार्ट हुए, ये वाला नोड एक दफा आया, फिर आप ये बॉटम नोड एक ही है, एक बॉटम नोड के बाद बॉटम नोड से आप दोबारा इस नोड पर चले गए, एंड दैट्स इट, और आपका पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये आपने मैश क्रिएट कर ली। सिमिलरली ये मैश क्या है, ये इस नोड से स्टार्ट हो रहा, ये इस तरह गया, इस तरह गया, और ये वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा बनाते हैं, इस तरह बार बार हम इसको लंबा नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि सर्किट छोटा, स्पेस कम है, तो बड़ा क्रैम्प्ड अप हो जाता है। सो फॉर द एस्थेटिक्स इट इज बेटर टू ड्रॉ दीज सेमी सर्कल्स टू शो दैट ओके दीज आर द टू meshes or the n number of meshes that we are going to consider to perform the circuit analysis. So the first step after the identifying the number of meshes required, आपने अंदर एक सेमी सर्कल से ड्रॉ कर लिया सबके अंदर। ठीक है, so this is your mesh 1, this is your mesh 2. The second step that you have to do is that you will assume that the current, आपने कोई करंट एज्यूम कर लेनी है। ठीक है जी, आपने एज्यूम कर लेना है कि इस मैश में करंट IA है, IB है, IC है, IB है, कोई भी आपने करंट एज्यूम कर लेनी है। मैं यहाँ पे assume कर रहा हूँ I1 करंट है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। Similarly, in this second mesh, we're also going to assume that what current is flowing in this mesh. We just assume that इस closed path के अंदर, इस total closed path में ये वाली करंट फ्लो कर रही है, इस closed path में ये वाली करंट फ्लो कर रही है I2। ठीक है, obviously दोनों में डिफरेंट आपने assume करा, ये नहीं कहा ये भी I1 है, ये भी I1 है। If this is I1, this will be I2. If this is IA, this will be IB. If this is IC, this will be IB. This is IX, it will be IY. ठीक है जी, इन दोनों के अंदर आपने जितनी भी करंट्स बनेंगे सबको एक अलग अलग करंट डेजिग्नेट करनी है। सो अभी तक हमने स्टेप्स कितने किए हैं, 2 स्टेप्स किए हैं। कौन कौन सा? पहले हमने मैश क्रिएट किए, ठीक है जी, कितने मैशेस बनाए, जितनी विंडोज हैं, फिर उनके साथ हमने एक करंट डेजिग्नेट कर दी, भाई इस मैश के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है, इस क्लोज पाथ में ये करंट फ्लो कर रहा है, इस क्लोज पाथ के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है। अब I0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर आप सर्किट की तरफ देखें तो सर्किट की तरफ गौर से अगर आप देखते हैं तो I0 क्या फ्लो कर रही है, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। करंट क्या फ्लो कर रही है I0? फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। ठीक है, अब ये जो I1 करंट है ये कहां पे फ्लो कर रही है? इट इज आल्सो फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। दिस I0 करंट इज आल्सो फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। ये देखें ना, ये क्लोज्ड पाथ जो आपने बनाया था, ये देखें, ये I1 क्या है यहां से ही, और अब ये नीचे की तरफ आ रही है। तो इस ब्रांच में I1 क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। I2 की तरफ देखते हैं तो I2 को देखिए एरो कहां पे है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपके पास। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या, अब आप देखें इस ब्रांच में हम देखते हैं अगर, तो I1 जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और I2 ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि I0 को I1 सपोर्ट कर रही है और I2 के अपोज कर रही है। ठीक है, I0 को I1 जो है वो सपोर्ट कर रही है और I2 क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सो बाय इंस्पेक्शन फ्रॉम द सर्किट I0 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। देखिए ना, I0 है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो I1 है
ये भी पानी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन I2 जब पानी को ऊपर तरफ धकेल रहा है, यानी ये अपोजिंग फोर्स है, I2 I0 के लिए अपोजिंग फोर्स है, तो फिर ऑब्वियसली I0 इक्वल टू I1 माइनस I2, आपने अपोजिंग फोर्स को माइनस कर दिया और I0 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। और आपको इसकी समझ नहीं आती, कहता है ये भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आपने क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं, अपोज सपोर्ट, तो आप मुश्किल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता मुश्किल रास्ता इख्तियार करना, आपको इस चीज की समझ आ जानी चाहिए। I0 is flowing from top to the bottom, I1 is also flowing from top to the bottom, so I1 and I0 they have same direction, ठीक है जी। तो यहाँ पे I1 भी पॉजिटिव, I0 भी पॉजिटिव, लेकिन I2 is opposing I0, so it will be नेगेटिव। अगर आपको इसको समझ नहीं आती तो आप ये जो नोड बन रहा है, से नोड ए, आप इसको केसीएल अप्लाई करना है। अगर आप केसीएल अप्लाई करें तो आप देखते हैं कि I0 इज एंटरिंग द नोड, सो माइनस I0, I1 इज गोइंग, ये देखा ना डायरेक्शन, I1 इससे को जा रही है, गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, सो प्लस I1, ये जो I2 है ये एंटर हो रही है नोड के अंदर, सो माइनस I2 इज इक्वल टू 0। बाय सॉल्विंग ये भी वही बन जाएगा, I0 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट विल बिकम I1 माइनस I2। देखना दोनों केसेस में सेम ही वैल्यू आ रही है। बार मैं अब ये रिकमेंड नहीं करता आप केसीएल अप्लाई कर लंबी चीज में जाएं, आपको इस चीज को समझ आनी चाहिए कि I1 is supporting I0, so it will be taken as positive, I2 is opposing I0, so it will be taken as negative, so I0 will be equal to I1 minus I2। so from here we will conclude that कि अगर हमें I1 और I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो we can find out the value of the I0। if we find out the value of I1 as well as I2, we can find out the value of the I0। अब I1 और I2 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दो अननोन है, तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है जी। इक्वेशंस कहां से आएंगी? मैश एनालिसिस, क्लोज्ड पाथ फॉर इक्वेशन, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? केवीएल। मतलब क्या हुआ, अब आपने को केवीएल की दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको। नोडल एनालिसिस के अंदर केसीएल की इक्वेशंस है, मैश एनालिसिस में केवीएल की इक्वेशंस है। दो अननोन है I1 और I2, मतलब दो इक्वेशंस आपके पास होंगी, कोई ना कोई केवीएल की इक्वेशंस आएंगी आपके पास। अब केवीएल की इक्वेशंस हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमने उसे किस तरह करना है। मैं उसके लिए आपको सबको रिड्रॉ करके दोबारा वही चार मेथड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। नोडल एनालिसिस में मैं आपको स्टार्टिंग में चार मेथड बताए थे, करता मैं यूज में चौथा सब मेथड किया था, इंस्पेक्शन मेथड। क्वेश्चन सॉल्व में चौथा मेथड इस्तेमाल करता रहा, लेकिन बेसिक्स समझाने के लिए आपको मैंने पिछले तीन भी सिखाए थे। इसमें मैं आपको चार मेथड बताऊंगा, ठीक है। इस्तेमाल हमेशा आसान वाला जो क्विक मेथड है उसको यूज करूंगा, ठीक है। बहरहाल लेट मी स्टार्ट विद द मेथड 1 and this one let me redraw the circuit, plus minus 12 volts, 6 kilo ohms, 6 kilo ohms, 3 kilo ohms, 3 volts, ठीक है। अब ये I1 भी कर लें और ये I2 भी कर लीजिए आप। अब अगर मैंने I1 के ऊपर केवीएल अप्लाई करना है तो आपको पता है वी हैव टू ऐड अप दी वोल्टेजेस, वी हैव टू ऐड अप दी वोल्टेजेस व्हिच ऐड अप टू बिकम इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड पाथ बाय द केवीएल। तो मैं केवीएल अप्लाई करना चाहता हूं एट I1, लेकिन मुझे ये वोल्टेज का तो पता है ना, तो मुझे इस वोल्टेज का पता ना इस वोल्टेज का पता, और मैं क्या करूं? तो मैं इसके लिए आसान हो क्या करता हूं जी, मैं कहता हूं जी let me say that this is V1 and let me say that this is V2 and let me say that this is V3, just like that। मैंने तीनों वोल्टेजेस एज्यूम कर ली, पोलैरिटी भी एज्यूम कर ली, वोल्टेज की मैंने डेजिग्नेशन भी एज्यूम कर ली मैंने, ठीक है जी। V1 V2 V3 मैंने एज्यूम कर ली, ठीक हो गया जी। अब आपके लिए केवीएल अप्लाई करना बड़ा इजी हो गया। केवीएल हमने I1 पे अप्लाई करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया सो प्लस V1, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया तो प्लस V2, फिर नेगेटिव टर्मिनल आया तो ये -12 इक्वल टू 0, और V1 is the voltage drop, V2 is also the voltage drop, so I have taken them as positive, while 12 volt is the voltage rise, I have taken it as negative, ठीक है। आप इसका वाइस वर्सा भी एज्यूम कर सकते हैं।
आसान अल्लाह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, पहले अगर पॉजिटिव टर्मिनल आए तो आप पॉजिटिव ले लें वोल्टेज को, अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आए आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप उसको -12 ले लें, उसको माइनस ले लें। आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यही असम्पशन था, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, लेकिन लेट अस नॉट कंफ्यूज ईच अदर, let us stick to the clockwise direction and stick to this assumption that if we encounter the positive terminal of the voltage before the negative terminal, it will be taken as positive, and if we encounter the negative terminal before the positive terminal, we will take that voltage as the negative voltage. ये आपके पास एक आ गई KVL, आगे आपके पास I1 की क्वेश्चन आ गई। अब अप्लाई करते हैं KVL I2 के ऊपर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं यहां से स्टार्ट हुआ, क्लोज पाथ यहाँ पे बना ना, यहां से स्टार्ट हुआ, देखना यहाँ पे देखिए आप, यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मुकम्मल हुआ, तो यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे मुकम्मल हुआ, तो पहले सबसे वोल्टेज कौन सी V3, सो प्लस V3, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, फिर ये 3 वोल्ट आया, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, सो +3, फिर ये 6K को देखिए, अब यहां से जब मैं ऊपर तक जाता हूं पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, V2 का नेगेटिव आ रहा है, सो -V2 = 0। ये तो आ गई थी मेरे पास सारी इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब मैंने यहां पे क्या करना, आगे मैं अप्लाई करूंगा ओम्स लॉ। V1 की वैल्यू बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होनी चाहिए, इस 6K में से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1, ठीक है जी, ये I1 इस तरह फ्लो कर रही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये I1 और ये I2, यानी मैं मुकम्मल आपको मैश क्रिएट करके दिखा दिया यहाँ पे। अब 6K में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे करंट कौन सा है इस पूरी मैश के अंदर, I1 है, तो 6K में से कौन सी करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ एक करंट फ्लो कर रहा है, वो कौन सा है, I1। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V1 will be equal to 6K into I1, 6K into I1, और V2 की वैल्यू क्या होगी, अब V2 में देखिए दो वोल्टेजेस हैं, दो करंट्स हैं, I1 नीचे की तरफ आ रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया जी, I1 नीचे आ रहा है, I2 ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। तो V2 की वैल्यू फिर क्या होगी बाय यूजिंग ओम्स लॉ, 6K I1 minus I2। 6K क्या है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, और ये क्या है, दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस 6 किलो ओम रेजिस्टर। अब ये I1 माइनस I2 क्यों किया है, I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया मैंने, इसको सोचने वाली बात है ना, मैंने I1 माइनस I2 क्यों कर रहा हूं, I2 माइनस I1 क्यों नहीं कर रहा मैं इसको, उसकी एक वजह हमें पता है from the chapter number 1 by the passive sign convention that for a resistor the current enters the positive terminal and leaves from the negative terminal, enters the positive terminal and leaves from the negative terminal। ये तो आप हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, passive sign convention that for a resistor the current enters the positive terminal and leaves from the negative। अब ये देखिए I1 ये कहां पे एंटर हो रही है, पॉजिटिव में एंटर हो रही है, नेगेटिव से लीव कर रही है, और I2 क्या है, ये नेगेटिव में एंटर होके पॉजिटिव से लीव कर रही है, नेगेटिव में एंटर होके पॉजिटिव से लीव कर रही है, यानी कि ये जो करंट है इट इज फॉलोइंग द पैसिव साइन कन्वेंशन, इट इज नॉट फॉलोइंग द पैसिव साइन कन्वेंशन फॉर 6 किलो ओम रेजिस्टर। तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, तो नेट करंट हमें पता है, हमें नेट करंट का यकीन है from the passive sign convention, हमें मनोमान इस चीज का यकीन है, we have the conviction that the current, the net current for this 6K resistor will enter the positive and leave from the negative। passive sign convention हमें सिखा दी है कि रेजिस्टर के लिए नेट करंट है वो हमेशा पॉजिटिव में एंटर होगा और नेगेटिव से लीव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा। सो इसका मतलब कि I1 की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, लेकिन I2 6K के लिए नेगेटिव में एंटर हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है बाय द पैसिव साइन कन्वेंशन, इस वजह से यहां पे इसको मैंने किया माइनस कर दी, ठीक हो गया जी। अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल होता, यहां पे नेगेटिव होता, तो फिर I1 ने नेगेटिव होना था, I2 ने पॉजिटिव होना था, ये केस टू केस आपने देख लेना। सो V2 इज इक्वल टू 6K into I1 minus I2, ठीक है जी। करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीविंग फ्रॉम द नेगेटिव, क्योंकि ये हमने पैसिव साइन कन्वेंशन हमको ये चीज सिखाई है, ठीक है। मैं दोबारा इसको आपके लिए दोहराता हूं, 6 किलो ओम रेजिस्टर है,
इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है. I1 is entering the positive and leaving the negative, which agrees with the passive sign convention, which states that for the resistor, for the passive element or the element which is absorbing the energy, the current should enter the positive terminal and leave the negative terminal. However, as far as this I2 is concerned, it is entering the negative terminal of V2, which is not possible by the passive sign convention. So that is why we have taken it as negative and I1 as positive. Or we can also say that this I1 is supporting V2, so it is taken as positive, and this I2 is opposing V2, so it is taken as negative. Now let us look at V3. अब अगर हम V3 को देखते हैं तो V3 के अंदर सिर्फ एक करंट फ्लो कर रहा है. देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही करंट आ रहा है और वो कौन सा है? I2. ठीक है, यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर दोनों मैशेज आपस में ओवरलैप कर रही है. इस वजह से इस ब्रांच में दो करंट्स है, इन दोनों ब्रांचेस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक मैश है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही मैश है. तो यहाँ पे सिर्फ I1 था और यहाँ पे सिर्फ I2 है. तो बाय पैसिव by the Ohm's law, the value of V3 will be equal to 3k I2. V3 will be equal to 3k I2. ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, और V3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, V2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें. यानी कि आप ये तीनों वैल्यूज इन इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक है, V1 को यहाँ पे कीजिए, V2 को यहाँ पे कीजिए, और V2 को यहां पर भी कीजिए, और V3 यहां पर आ जाएगा आपके पास. ठीक हो गया जी. तो ये बेसिकली अब आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है अपने सर्किट के अंदर. बाय सब्स्टिट्यूटिंग थोड़ी जगह जरा क्रैम्प अप होती जा रही है, प्लीज बियर विद मी. सो ये क्या बन जाएगा? 6k I1, V2 की जगह आ जाएगा 6k I1. मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं. 6k into I1 is equal to 6k I1. 6k into minus I2 will be equal to minus 6k I2. ये जो minus 12 है, ये राइट हैंड साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, so it will become plus 12. अगर मैं इसकी बात करता हूं तो V3 की वैल्यू क्या है? 3k I2, उसके बाद माइनस V2. ठीक है जी, माइनस V2. यहां पे क्या करना मैंने? माइनस V2 करना. तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 6k I1 माइनस 6k I1, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो प्लस 6k I2, और जो प्लस 3 है ये राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा आपके पास. यार ये V2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप जरूरी करके देख लीजिएगा, यही आएगा आपके पास. ठीक है यार, मैथ की चीजें सब प्लीज एफर्ट करके खुद भी देखिएगा. अब I1 वाली टर्म्स ठीक कर लीजिए और I2 वाली टर्म्स अलग कर लीजिए. तो आपको क्या आ जाएगा? जो लोग 10 6k plus 6k I1 minus 6k I2 is equal to 12. Let me say this is my question number 1. और यहां पे भी I1 और I2 वाली टर्म्स अलग अलग कर लीजिए. आपके पास क्या आ जाएगा? 10 minus 6k I1 plus 3k plus 6k I2 is equal to minus 3, and this is my question number 2. इसी क्वेश्चन में देखें दो अननोन है, I1 एंड I2. इसी क्वेश्चन में भी दो अननोन है, I1 एंड I2. तो आप इनको साइमल्टेनियसली 1 और 2 को सॉल्व करके यू कैन परफॉर्म दिस सर्किट एनालिसिस. ठीक है जी. सो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं? 1 और 2 के ऊपर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और आपके पास I1 और I2 की वैल्यू है. यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी.